Hi, dear friends. I hope all of you are safe and staying at home only. I, Prashant Lakhani, welcomes you once again in the world of SYSC Economics Chapter 2, Part 8. Dear friends, till this session we have discussed about utility analysis. What is utility? What are the different types of utility? What are the features, characteristics of utility? After that, we have started with one concept of relationship between total utility and marginal utility. And this relation itself explained us how do we behave as a consumer when we go to market to buy something. So other things remain constant. When the consumer consumes more and more units of the same commodity in a continuous and quick manner, he gets lesser and lesser utility from it. That was law of diminishing marginal utility given by Alfred Marshall. This law of DMU depends on 6 assumptions. That is continuous consumption, uniform commodities, cardinal measurement, rational behavior, reasonable size, and no change in taste and preference of the consumer. Dear friends, in our last session, we have discussed criticisms to the law of DMU. ये जो कायदा है कि अगर आप एक की एक चीज बार बार लगातार यूज करेंगे तो थोड़े वक्त के बाद थक जाएंगे, पक जाएंगे, उब जाएंगे. It has some 8 mistakes. Cardinal measurement is not practical क्योंकि यूटिलिटी को, सेटिस्फेक्शन को हम नंबर भी नहीं गिन सकते. It has 6 assumptions which are impossible. Utility is interdependent. In case of indivisible goods like television or refrigerator, continuous consumption is not possible. In case of money, MU does not diminish every time. Okay. The law is about one commodity theory, but in our routine life, normally we use more than one commodity. There are too many assumptions which are not real. In 90% cases, we can see consumer consume the commodities not for utility purpose but for show off purpose. That was the topic of criticisms to the law of DMU. Dear friends, the topic which we are going to start today, that is most important topic of this chapter, that is exceptions to law of DMU. First of all, let me introduce the word exceptions. अपवाद, breaking of normal trend, कुछ हटके, something different than others. जो चीज दुनिया कर रही है अगर हम भी वही करते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा? Do something different. दुनिया से हटके कुछ किया जाए, there is exceptions. अगर मैं इस एक वर्ड को स्पेसिफाई करना चाहूँ फ्रेंड्स, तो लेट मी गिव यू one very interesting example. When I started with teaching of economics, all my friends, my family members, relatives, parents, brother, including my teachers, all of them were saying me कि अकाउंट्स पढ़ाओ, मैथमेटिक्स पढ़ाओ, इको में क्या कमाएगा यार वो, इको में क्या रखा है. Friends, when I entered for teaching of economics,
मैंने ये सर्च किया कि लोग इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाले बहुत कम हैं। कम क्यों है? तो बोले बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है। सोचो बोरिंग क्यों है? बोले बच्चे इको सुनने को पसंद ही नहीं करते हैं। सुनने को पसंद क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि लोग बुक में से पढ़ाते हैं। फ्रेंड्स, मेरा कोई भी एग्जाम्पल, मेरा कोई भी एक्सप्लेनेशन फ्रेंड्स बुक से नहीं आता। अगर बुक से ही पढ़ाना है तो वो तो एरा गेरा नथु गेरा कोई भी पढ़ा दे। तो व्हाट आई डिड, मैंने अपने एग्जाम्पल्स खुद क्रिएट किए, अपने एक्सप्लेनेशन को इंटरेस्टिंग करने के लिए बुक के बाहर के एग्जाम्पल्स यूज किए, एंड इट बिकेम सो पॉपुलर क्योंकि हम बुक से नहीं पढ़ रहे हैं। अगर आप अपना टेबल शेड्यूल जो हमने पढ़ा वो देखेंगे तो दैट इज ऑल्सो नॉट फ्रॉम टेक्स्ट बुक, और कोई भी बुक से नहीं है, इट इज माई ओन क्रिएशन। वो कबीर सिंह वाला जो हमने एग्जाम्पल समझा था, रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू। तो डियर फ्रेंड्स, एक बात मुझे समझ में आ गई कि जो सब लोग कर रहे हैं वो गलती मुझे नहीं करनी, मुझे बुक से एक्सप्लेनेशन नहीं देना। आई शुड हैव माई ओन एक्सप्लेनेशन, and it became hit. So today I have near to 1500 students yearly only for economics. तो ये जो चीजें हैं, it does matter. जो सब लोग कर रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं। Do something different. If you want to be success in your life, do something different. कुछ अलग करे। जो सब लोग कर रहे हैं वो नहीं कर रहे। लोग जहाँ पे सोचना बंद करें वहां से शुरू करो। लेट मी गिव यू वन अनदर एग्जाम्पल फ्रॉम बॉलीवुड। फ्रेंड्स, शाहरुख खान, बादशाह, किंग खान, आप जो भी बोलते हो, अगर आपके साथ में बात शेयर करूं, शाहरुख खान ने जब एंट्री लिया, शाहरुख खान ने जब इसमें एंट्री लिया तो बिलीव मी, उसने टीवी सीरियल से एंट्री लिया, एंड द फर्स्ट सीरियल वाज फौजी, जहाँ पे मिलिट्री बेस पे सीरियल का कॉन्सेप्ट था। शाहरुख खान वाज इन लीडिंग रोल, उसको सैनिक बनना है। वो कॉलेज में एंट्री लेता है मिलिट्री के लिए, ट्रेनिंग के लिए। अब नॉर्मली देखिए, अगर आप सैनिक बनने वाले हो तो आप बहुत मेहनती होते हो, ईमानदार होते हो, देशभक्त होते हो। ये सीरियल का कॉन्सेप्ट ये था कि शाहरुख खान बहुत आलसी था, लड़कियों को लाइन मारना, फालतूगिरी, मस्ती, ये सब उसको पसंद था। उसमें कोई ईमानदारी नहीं थी, हर ट्रेनिंग में वो चीटिंग करता था। अल्टीमेटली उसको फौज में से निकाल दिया गया एंड सीरियल बिकेम हिट। पूरा उल्टा रोल था। उसके बाद उसका सेकंड सीरियल आया सर्कस। गांव से शहर में आता है, सर्कस ज्वाइन करता है कमाने के लिए। अब देखिए, नॉर्मली जो लीडिंग रोल में होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, दूसरों को हेल्प करते रहता है। शाहरुख खान का इसमें रोल पता है क्या था आपको फ्रेंड्स? वो हर एपिसोड में रोते रहता था, छोटी छोटी मुश्किलों को लेकर दूसरों के पास हेल्प मांगने जाता था, और हर चीज में डरा हुआ रहता था, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं था। एंड सीरियल बिकेम हिट। शाहरुख खान ने बाद में मूवी में एंट्री मारा। जो पहली मूवी थी उसकी, इट वॉज दीवाना। ओनली 45 मिनट्स का रोल था। इंटरवल के बाद एंट्री थी एक गाने से, कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला। फ्रेंड्स, मूवी का स्टोरी कॉन्सेप्ट ये था कि ऋषि कपूर हीरो था, दिव्या भारती हीरोइन थी, दोनों में प्यार होता है, दोनों की शादी हो जाती है। इंटरवल तक में ऋषि कपूर टपक जाता है और शाहरुख खान एंट्री लेता है, और एक विधवा लड़की से शादी करने के लिए एक पैसे वाला बाप का बेटा जो शहर का सबसे अमीर लड़का था, वो एक विधवा से शादी करने के लिए पूरे समाज से लड़ने को तैयार हो जाता है शाहरुख खान। ये स्टोरी था। इतना अच्छा कैरेक्टर, इतना अच्छा रोल। फ्रेंड्स, मूवी फ्लॉप हो गया। उसका दूसरा मूवी आया चमत्कार। गांव से शहर में कमाने के लिए आता है, एकदम सीधा साधा लड़का, कोई मचमच नहीं, कोई पंगा नहीं, एकदम सीधा साधा ईमानदार लड़का। और उसको मार्को नाम का एक भूत दिखता है, नसीरुद्दीन साहब,
और वो भूत की हेल्प लेकर सबको हेल्प करते रहता है। पूरे मूवी में इतना अच्छा रोल उसका, इतना ठंडा दिमाग, कोई मारा मारी किसी से नहीं करना है, कोई लड़की का लफड़ा नहीं, एकदम सिंपल सा लड़का भूत की हेल्प लेकर सबको हेल्प करते रहता है। गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल को हेल्प करता है भूत की हेल्प लेकर, क्रिकेट मैच खेलता है भूत की हेल्प लेकर, वो मार्को नाम का भूत होता है नसीरुद्दीन सा, उसकी हेल्प लेकर। इतना अच्छा कॉन्सेप्ट, बच्चों ने मूवी देखा, बड़ों ने देखा ही नहीं, मूवी फ्लॉप। शाहरुख खान को एक बात समझ में आ गई कि जो सभी बॉलीवुड स्टार करते हैं, हीरो लोग करते हैं, अगर मैं भी ऐसे ही रोल करूँगा ईमानदारी से, स्ट्रेट फॉरवर्ड हीरो की, तो फिर मैं किंग खान कभी नहीं बन पाऊंगा। उसके बाद उसका जो थर्ड मूवी आया, इट वॉज बाजीगर। हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, ये इस मूवी का थीम लाइन था। फ्रेंड्स, अगर आप स्टोरी सुन पाओ तो मूवी के पहले हाफ एन आवर में शाहरुख खान हीरो है, शिल्पा शेट्टी हीरोइन है, और शाहरुख खान खुद हीरोइन का खून कर जाता है। बाद में वो उसकी छोटी बहन काजोल से प्यार करता है। पूरा मूवी में 3 खून शाहरुख खान करता है, वो हीरो है खुद, और 3 खून करता है। और ऐसा नहीं कि संकी था, विथ प्रॉपर प्लानिंग एंड में काजोल को पता चल जाता है और शाहरुख खान को मार जाता है। मूवी सुपर हिट और रातों रात शाहरुख खान स्टार बन गया एंड ही वॉन फर्स्ट फिल्म फेयर अवार्ड फॉर मूवी बाजीगर, नॉट फॉर बेस्ट हीरो, फॉर बेस्ट विलन। शाहरुख खान की लाइफ का जो पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला है वो बेस्ट विलन के लिए मिला है, फॉर नेगेटिव रोल, नॉट फॉर पॉजिटिव रोल। शाहरुख खान को बात समझ में आ गई कि जो सब लोग कर रहे हैं वो मुझे नहीं कर रहे। उसके बाद का जो मूवी उसने साइन किया यशराज फिल्म्स के साथ, यश चोपड़ा के साथ, फिर इस मूवी डर, जादू तेरी नजर, वो वाला किरण, जहां से इसकी शुरुआत है करने की। फ्रेंड्स, नॉर्मली ऐसा होता है कि अगर हीरो और हीरोइन साथ में है तो हीरोइन किसी से नहीं डरेगी, 15-20 गुंडे भी आ जाएंगे तो शाहरुख खान हीरो बचा लेगा। इस मूवी में जूही चावला हीरोइन है, शाहरुख खान हीरो है। पूरे मूवी में शाहरुख खान जूही चावला को डराते रहता है, एंड में सनी देओल आकर शाहरुख खान को टपका डालता है। मूवी बिकेम सुपर हिट और उसके बाद शाहरुख खान ने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। फ्रेंड्स, दैट इज किंग खान। डू समथिंग डिफरेंट इफ यू वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। तो फ्रेंड्स, बहुत आसान सा मतलब था ये समझने के लिए, बहुत आसान सा मतलब। पूरे कॉन्सेप्ट का मतलब अगर आप ठीक से समझे, अगर आप ठीक से सोचे तो यू विल गेट दिस। कहीं ना कहीं पूरी बात का मतलब एक्सेप्शंस का मतलब ब्रेकिंग ऑफ नॉर्मल ट्रेंड। नाउ सी, इन आवर टॉपिक व्हाट इज एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। कायदा बोल रहा है कि अगर आप एक ही बार बार लगातार कंज्यूम करोगे, वापरोगे, यूज करोगे, तो आफ्टर सम टाइम उसमें से जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो डिमिनिश हो जाता है। तो आफ्टर सम टाइम यू विल बिकम बोर्ड, आप थक जाएंगे, पक जाएंगे, उब जाएंगे। नाउ फ्रेंड्स, to understand this topic in a proper manner, हम एक बात को सोच लेते हैं। जैसे शाहरुख खान को मार्को नाम का भूत दिखता था, मान लो कि मुझे यहाँ पे केमिकल लोचा है, मुझे मार्शल नाम का भूत दिखता है, मैं मार्शल से बातें कर सकता हूँ। ओके फ्रेंड्स, सो नाउ Marshall is saying that if you are consuming the commodities in a continuous and quick manner, you will get lesser and lesser satisfaction from it. मैं मार्शल को बोल रहा हूँ कि मार्शल, I have 6 examples with me in which I can prove even after continuous consumption, my MU, my marginal utility, additional satisfaction does not decrease. इट विल इंक्रीज। मैं उसको ये बोल रहा हूँ कि मेरे पास 6 एग्जाम्पल है जिसमें मैं प्रूव कर दूंगा कि इवन आफ्टर कंटिन्यूस कंजम्पशन, मैं कोई एक चीज बार बार लगातार इस्तेमाल करूँ, उसके बावजूद भी उस चीज में मेरा इंटरेस्ट कम नहीं होगा, बढ़ेगा। इट विल इंक्रीज, इट विल नॉट डिमिनिश।
it will not decrease. I have 6 examples with me. Friends, today our topic will not be covered in one session only. It will be covered in 2 different sessions. हम 2 अलग अलग हिस्सों में आज के टॉपिक को डिवाइड करेंगे, क्योंकि आज तक बोर्ड एग्जाम में एक सिंगल क्वेश्चन पेपर ऐसा नहीं गया फ्रेंड्स, एक सिंगल क्वेश्चन पेपर ऐसा नहीं गया कि जिसमें ये टॉपिक उन्होंने ना पूछा हो. एक सिंगल क्वेश्चन पेपर ऐसा नहीं गया. ओके फ्रेंड्स, तो नाउ द कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर. फर्स्ट एग्जाम्पल इज हॉबीज. मैं मार्शल को बोल रहा हूं कि मार्शल, इन केस ऑफ हॉबीज लाइक स्टैम्प कलेक्शन, every additional unit of stamp will increase my utility. It will not decrease my utility. Suppose I have hobby of stamp collection. अरे वो आता है ना रेवेन्यू स्टैम्प, ऐसा चिपकाने का, 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया, जिसमें इंदिरा गांधी का थोड़ा होता है, वैसा वाला. सपोज मुझे स्टैम्प कलेक्शन की हॉबी है and I have 90 stamps with me, 90 stamps with me. सपोज सभी स्टूडेंट्स को पता है कि मुझे स्टैम्प कलेक्शन का हॉबी है. एक दिन क्लास में लेक्चर में एक बच्चा लेट आया, लेकिन वो मुझे खुश रखने के लिए एक स्टैम्प लेकर आया. क्या मैं उसके ऊपर गुस्सा करूंगा फ्रेंड्स? नाउ आई विल हैव 91 स्टैम्प्स विथ मी. यस, नाउ आई विल हैव 91 स्टैम्प्स विथ मी. तो इट विल नॉट डिक्रीज माई यूटिलिटी, इट विल इंक्रीज माई यूटिलिटी. सो आई एम सेइंग टू मार्शल कि मार्शल, इन केस ऑफ हॉबीज लाइक स्टैम्प कलेक्शन, every additional stamp increases the MU. It does not decrease the MU. तू जब सब झूठ सिखा रहा है, सब झूठ सिखा रहा है, झूठ बैठा रहे वहीं पर, सब झूठ सिखा रहा है. अरे मेरे को तो दिखता है ना केमिकल लोचा है, जैसे वो मुन्ना भाई MBBS में बापू दिखते थे, ऐसा अपने को तो दिखता है. तो फर्स्ट पॉइंट दैट इज हॉबीज. सेकेंड पॉइंट इज माइजर, लालची. फ्रेंड्स, इन इकोनॉमिक्स माइजर का मतलब कंजूस नहीं होता है, लालची होता है. अ माइजर इज अ पर्सन हु नोज हाउ टू अर्न द मनी बट ही डज नॉट नो हाउ टू स्पेंड द मनी. लालची वो इंसान है जिसको ये समझता है कि पैसा कमाना कैसा है, और उसको ये नहीं समझता है कि पैसा खर्च कैसे करना है. सपोज कोई एक लालची इंसान के पास 2 लाख रुपए पड़े, मैं उसको 50 का नोट यहाँ से दिखाऊं तो वो ललचाएगा, ऑफकोर्स ललचाएगा, मेरे इशारे पे नाचने को तैयार हो जाएगा. सो इन केस ऑफ माइजर, एवरी एडिशनल रूपी इंक्रीजेस द एमयू, इंक्रीजेस द यूटिलिटी, इट डज नॉट डिक्रीज द यूटिलिटी. सो मार्शल तो सब झूठ सिखा रहा है, बैठा है वहीं पर. लालची जैसे जैसे वो कमाएगा वो और खुश हो जाएगा. अगर उसकी तिजोरी में 2 लाख रुपए पड़े हैं और 50 का नोट और हो गया तो वो खुश होगी, अब मेरी तिजोरी में 2,50,000 रुपए है. भले वो खर्च नहीं करेगा बट ही बिकम्स हैप्पी. उसका एमयू बढ़ रहा है, उसका यूटिलिटी बढ़ रहा है. और थर्ड पॉइंट इज ड्रंकर्ड, बेवड़ा. ये आसमान में टॉइंग, लाखों तारे टॉइंग, बेवड़ा, ड्रंकर्ड. मैं मार्शल को पूछूं, मार्शल एक बात बता, अगर कोई एक बेवड़ा हो, उसने 4 पैक मार के बैठा हो, अगर कोई एक फ्रेंड आकर उसको बोले चल मेरी तरफ से 5 चॉकलेट, क्या वो बोलेगा? अब नहीं, अब मैं थक गया हूँ, पक गया हूँ, उब गया हूँ. क्या वो ऐसा बोलेगा? द आंसर इज नो. वो ऐसा नहीं बोलेगा फ्रेंड्स, वो ऐसा नहीं बोलेगा. इन case of drunkard, every additional pack, every additional glass, every single unit of glass will increase his MU, will increase his utility, will increase his satisfaction level. It does not decrease. कोई बेवड़ा नहीं बोलता है कि अब मैं पी के थक गया हूँ, पक गया हूँ, उब गया हूँ. उसको और चाहिए, थोड़ा और लगा. So in case of drunkard, every additional pack increases the MU, increases the utility. It does not decrease the utility. मार्शल, तू सब झूठ सिखा रहा है, तू सब झूठ सिखा रहा है. That was our third point, drunkard. Fourth point is
रीडिंग में। आप में से अगर इसको पढ़ने की आदत हो, मैं बोल रहा हूँ मार्शल, रीडिंग इज द बेस्ट हैबिट एंड बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड्स। आई रिपीट, रीडिंग इज द बेस्ट हैबिट एंड बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड। व्हाट्सएप मैसेज चैट रीडिंग नहीं फ्रेंड्स, बुक्स। फ्रांस के एक साइंटिस्ट ने लेबोरेटरी में 2 साल तक सर्वे करके ये प्रूव कर दिया है कि जिनको बुक रीडिंग का आदत होता है ना फ्रेंड्स, उनको हार्ट अटैक कभी नहीं आता है, उनको बीपी हाई कभी नहीं होता है। इट इज प्रूव्ड इफ यू हैव हैबिट ऑफ रीडिंग। हाँ, आप क्या रीडिंग करते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है कि आप रीडिंग क्या करोगे। वॉट यू विल रीड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्या रीडिंग करते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। बिलीव मी, when we use these words के रीडिंग में, तो रीडिंग इंक्रीजेस नॉलेज एंड नॉलेज इंक्रीजेस यूटिलिटी, इट डज नॉट डिक्रीज यूटिलिटी। आप क्या पढ़ोगे, जो पढ़ोगे वैसा नॉलेज बढ़ेगा। और एक बात याद रखिए फ्रेंड्स, किसी इंसान की वैल्यू नहीं होती है सोसाइटी में, उसके नॉलेज को लोग सलाम करते हैं। नॉलेज एम्पावरमेंट इज इम्पोर्टेंट, योर नॉलेज इज इम्पोर्टेंट। आप क्या पढ़ोगे, क्या पढ़ते हो, इट इज टू इम्पोर्टेंट। मैं आपकी बुक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, आप में से बहुत लोग हैं ना न्यूज़पेपर बहुत पढ़ते हो। अकॉर्डिंग टू मी, इट्स माई पर्सनल व्यू, अकॉर्डिंग टू मी रीडिंग ऑफ न्यूज़पेपर इज वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी एंड एनर्जी। सब वही तो न्यूज़ होते हैं यार, यहाँ ट्रक पलटी खा गया, वहाँ पे बाढ़ आ गई, इतने लोग मर गए, यहाँ पे इसका मर्डर हो गया, सब फालतू की जाए, ये क्राइम हुआ, यहाँ पे ये है, इसने ये भाषण दिया, अरे सब फालतू नेगेटिव थॉट्स। कुछ लोग स्टूपिड सी नॉवेल पढ़ते रहते हैं, कुछ गर्ल्स को मैंने देखा है, ओके 3-3 घंटे तक पलंग पे पड़ी पड़ी बुक पढ़ेगी और मम्मी बोलेगी खाना खाने चलो, मम्मी आप लोग खा लो, मैं बुक खत्म करके आऊँ। मम्मी खुश होती है तो बेटी पढ़ रही है, अरे देखो तो सही क्या पढ़ रही है, स्टूपिड सी नॉवेल पढ़ रही है। अब भी पता चलेगा खून नौकर ने किया है कि नौकरानी ने किया है। अरे खून नौकर करे या नौकरानी करे, उसके डैश की टांग, उससे तेरी लाइफ को क्या फर्क पड़ेगा। फ्रेंड्स, आप क्या पढ़ते हो ना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द वेरी फर्स्ट बुक विच आई हैव रेड इन माई लाइफ, इट इज रिटन बाय डेल कार्नेगी। ये इंग्लैंड का ऑथर है। हाउ टू लिव अ लाइफ एंड इन्फ्लुएंस फ्रेंड्स। हाउ टू लिव अ लाइफ एंड इन्फ्लुएंस फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, ये कोई स्टोरी नहीं है, अपने को लाइफ कैसे जीनी चाहिए और फ्रेंड्स कैसे और बनाए। मैं कभी भी अपने स्टूडेंट्स को स्टूडेंट्स नहीं बोलता हूँ फ्रेंड्स, ऑलवेज। मेरी सोसाइटी में 7 साल के छोटे बच्चे से लेकर 70 साल की बूढ़ी माई तक, दे आर माई फ्रेंड्स, दे टॉक टू मी। मैं उनसे बात शेयर करूँ, वो मेरे से बात शेयर करे। फ्रेंड्स, मैं चाहूँ उसको फ्रेंड बना लूँ। इस बुक में कोई स्टोरी नहीं है, दे हैव गिवन सम टेक्निक्स, सम टिप्स। मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करूँ। हम जिनको अच्छा फ्रेंड बनाना चाहते हो ना, तो जब उनसे बातें करें ना तो बीच बीच में उनका नाम बोलना चाहिए, जो उनका रियल नेम है। टिंकू पिंकू नहीं, पेट नेम नहीं, रियल नेम। उनको बहुत पसंद आएगा। कभी भी अपने फ्रेंड्स के बर्थडे भूलो मत, बर्थडे कभी मत भूलो, कभी बर्थडे मत भूलो। उनको कॉल करके विश करो, व्हाट्सएप मैसेज नहीं, टेक्स्ट मैसेज नहीं, फोन पे बात करते हो। आप खुद भी ट्राई करना, आपके बर्थडे पे आप 3 लोगों के फोन पूरे साल नहीं भूलोगे। एक जिसका फोन रात को 12 बजे आया होगा, पहला फोन। दूसरा जिसका सुबह 6 बजे के आसपास आया होगा, और तीसरा एकदम लास्ट रात को 12 बजे कॉल आया होगा, बर्थडे का दिन खत्म होने के बाद। ये 3 लोगों को हम कभी नहीं भूलेंगे पूरे साल। ओके फ्रेंड्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें ऐसी कुछ टेक्निक नहीं दी है। हम जिनसे बातें करें ना, उनकी आंखों से आंखें मिला के बात करें तो आपके हो जाएंगे। हम उनको समझ पाएंगे, हम उनको समझा पाएंगे कि हम क्या चाहते हैं। तो इट इज रिटन बाय डेल कार्नेगी, 60 रुपए की बुक है, एंड इट इज अवेलेबल इन एवरी लैंग्वेज। हाउ टू लिव अ लाइफ एंड इन्फ्लुएंस फ्रेंड्स। ऐसी बुक पढ़नी चाहिए। एक और बुक जो आपको पढ़नी चाहिए, ओके, 3 मिस्टेक्स इन लाइफ, रिटन बाय चेतन भगत।
जिसके ऊपर से काइपोचे मूवी बना दी, सुशांत सिंह राजपूत का काइपोचे मूवी ठीक था, बट बुक इज सुपर। एक बार ये पढ़ लो, आप लाइफ में कोई गलती नहीं करोगे कभी। एक और बुक है वन नाइट एट कॉल सेंटर, अगेन रिटन बाय चेतन भगत। इसके ऊपर से भी एक मूवी आ गया हेलो, मूवी फ्लॉप था, पर आप बुक पढ़ो। आप कभी कॉल सेंटर में काम नहीं करोगे फ्रेंड्स। यू विल अंडरस्टैंड कि ये जो रात को कॉल सेंटर में काम चलते रहता है, ये लोग आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ा देते हैं। 20,000 का पगार देकर आपको खरीद लेते हैं। यू वोंट वांट दैट। एक बार आप बुक पढ़ो। सो देयर आर सो मेनी बुक्स लाइक दिस फ्रेंड्स। एक बुक है वाई टू बाई, ओनली 80 पेजेस। आप कोई भी चीज मार्केट से क्यों खरीदते हो? हम नॉर्मली बन यूज करना है, शो ऑफ करना है, पसंद आया, सस्ता था, नहीं फ्रेंड्स। ये बुक ने क्या कहा है पता है? वाई टू बाई। आप कोई भी चीज क्यों खरीदते हो? क्योंकि सामने वाला वही बेच रहा है, इसलिए आप खरीद रहे हो। जिनको मार्केटिंग में MBA करना हो फ्रेंड्स, उनके लिए ये जो बुक है ना वाई टू बाई, ये इसका पिलर है, पिलर बेस। ओनली 80 पेजेस, बट इट इज अवेलेबल ओनली इन इंग्लिश। साथ में डिक्शनरी लेके बैठना पड़ेगा। तो ये सब बुक जब आप पढ़ते हो तो रीडिंग इंक्रीजेस नॉलेज एंड नॉलेज इंक्रीजेस यूटिलिटी। सो मार्शल तो सब झूठ सिखा रहे हैं। रीडिंग से नॉलेज बढ़ता है, नॉलेज से यूटिलिटी बढ़ती है। जैसे जैसे मैं बुक पढ़ूँ मेरा इंटरेस्ट बढ़ेगा, कम नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट म्यूजिक। मार्शल के जमाने में शायद रेडियो नहीं था। तन का धन का मन का रेडियो बजने दे जरा, बजाते रहो रेड एफएम। म्यूजिक। In case of music, that is our fifth point, music. In case of music, every new song, every additional song increases the MU. It does not decrease the MU. आप में से बहुत लोगों को आदत होती है 24 घंटे कान में घुस के सुनते रहते हैं। क्या ऐसा होता है कि 4-5 गाने सुन लिए अब थक गए, पक गए, उब गए? Every new song, every additional song increases the MU. It does not decrease the MU. इससे यूटिलिटी कम नहीं होती है, बढ़ती है। मार्शल सब झूठ सिखाए। 6th पॉइंट इज मनी। अपना सपना मनी मनी मनी। इन केस ऑफ मनी, every additional amount of rupee, every additional quantity, right? It does increase the interest. It does increase the MU. It does increase the utility. It does not decrease utility. इससे इंटरेस्ट कम नहीं होता है। मैं जैसे जैसे और कमाता हूँ मुझे और चाहिए। क्या कभी ये पॉसिबल है कि सपोज आज आपने मेरे को फीस पे किया, कल किसी और ने पे किया, परसों किसी और ने फीस पे किया, चौथे दिन में थक जाऊंगा, बोलूँगा रोज रोज क्या फीस लाते हो, मेरे को फीस नहीं चाहिए, फीस लेकर मैं थक गया हूँ, पक गया हूँ, उब गया हूँ। अरे ये कैसे पॉसिबल है? आप बोलेंगे सारा साइकिल कैसे करें? पैसा लेने में कौन थक जाएगा, कौन पक जाएगा, कौन उब जाएगा? सो मार्शल इन केस ऑफ मनी, every additional quantity of money, rupee, increases my utility. It does not decrease the utility. तो सब झूठ सिखाया। Friends, you should not be confused here. आज हमने इसका पार्ट 1 खत्म किया। At present, we are on turning point of this session, of this topic. And that turning point, उसका जो सस्पेंस खुलेगा, that will be our next session. तो आज हमने अब तक ये समझ लिया कि in case of hobbies like stamp collection, every additional stamp increases the utility, increases the interest. Okay? In case of miser, every additional rupee increases the utility. In case of drunkard, every additional pack increases the utility of that beoda. In case of reading, reading itself increases utility. और जो चीज का यूटिलिटी आपको आ गया, आपका नॉलेज आ गया, आप उसका इस्तेमाल बढ़ा देते हो। ये तो हमने फीचर्स ऑफ यूटिलिटी में भी पढ़ा था। जितना नॉलेज ज़्यादा उतना यूटिलिटी ज़्यादा। इन केस ऑफ म्यूजिक, every additional song increases the interest, increases the utility. And in case of money, every additional quantity of money increases the utility. Friends, don't worry. जो नोट्स आपको दिया जा रहा है, ये सामने आपके साथ जो फ्लैश हो रहा है होते गया, इसमें हमने सिर्फ एक एक पार्ट समझा है। ये मेरी सोच थी। आज मैंने मार्शल को कहाँ कहाँ पे झूठा प्रूव किया है। नाउ आवर नेक्स्ट लेक्चर विल बी द टर्निंग पॉइंट। तो आज मैं बोल रहा हूँ कि मार्शल तू सब झूठ सिखा रहा है, सब झूठ सिखा रहा है, भाग भाग। फ्रेंड्स, आप मत जाओ, नहीं आप भी जाओ। दैट्स इनफ फॉर दिस सेशन। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच।
Soon I'll approach you again.